और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक के साथ सारी सरकारें जुटी हुई हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइंस द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। अभी तक इस कंट्रोल रूम ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से लगभग 5000 शिकायतों का निदान किया है। आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। हमारी आशा है कि इन कदमों के साथ हम लॉकडाउन मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर सकेंगे। गरीब कल्याण पैकेज of rupees 1.70 lakh crore announced by Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji on 26th March to ensure that the weaker section of the society continues to get the basic amenities and are not impacted during the lockdown period due to the COVID-19. The swift implementation of the package is being continuously monitored by the central and state governments, Finance Ministry, the concerned ministries, Cabinet Secretariat and PMO. As on 13th April 2020, yesterday, more than 32 crores beneficiaries have been directly given cash support through DBT amounting to rupees 29,352 crore under the package. In addition to point made by my colleague of MHA, another point regarding is under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the government has distributed free ration of food grains to 5.29 crore beneficiaries. 3,985 million tons of pulses have also been dispatched to various states and union territories for distribution. More than 97 lakh free Ujjwala gas cylinders have been delivered to beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. 2.1 lakh members of EPFO have taken benefit of online withdrawal of non-refundable advance from EPFO account amounting to rupees 510 crore. Rupees 14,946 crore have been transferred to 7.47 crore farmers towards first installment of PM Kisan. Rupees 9,930 crore has been disbursed to 19.86 crore women Jan Dhan account holders through DBT. Rupees 1,400 crores has been disbursed to about 2.82 crore old age people, widows and disabled persons under National Social Assistance Program. More than 2 crore building and construction workers have received financial support amounting to rupees 3,071 crore. The detailed press release relating to this PM Garib Kalyan package is available on the PIB website, which I will request you to get access to that. Yesterday,
we had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन ICMR नेटवर्क ऑफ लैब्स, 2,991 2991 were from private labs. As of now, we have 166 labs under the ICMR network. 70 labs which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. With respect to, as I said, the kits that we have, we yesterday mentioned to you that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits, which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a pretty long period of time. Additionally, we are ordering close to about 33 lakh kits for RT-PCR, and 37 lakh rapid kits are expected to come at any point in time. Around 377.5 ton essential medical cargo इसको देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में। इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, DG ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉयर गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज ले लें, दिल्ली के एरियाज ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं, उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेदिंग फैसिलिटीज़ पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब तक की अगर डिटेल्स देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कन्फर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ की संख्या 339 हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में भी बताया। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट के अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए
भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि लॉकडाउन मेजर्स का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और उस प्रांत में वायरस के फैलने का खतरा है, तो क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो जो भी सहूलियतें या जो भी एक सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाएगी वह विड्रॉ भी की जा सकती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दवाइयाँ, फूड राशन और इसेंशियल कमोडिटीज़ के संबंधित एम्पल रिजर्व भी फील्ड लेवल पर इंश्योर किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से 7 चीज़ों पर समर्थन की अपील की, जिसमें उन्होंने मुख्यतः कहा है कि हमें सबको अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर कि वह बुजुर्ग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% पालन करें, अपने जीवन में एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करें, साथ ही होममेड फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय द्वारा गर्म पानी और काढ़े के सेवन के सजेशन को भी उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके द्वारा कि हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की मदद के लिए उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की विनती भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एफर्ट करना है कि गरीब परिवारों की फूड रिक्वायरमेंट्स का हम ध्यान रखें। अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी जो हमारे सहभागी हैं, उनका भी हम कंपैशनेट भाव से ध्यान रखें कि उनको कोई भी लाइवलीहुड से वंचित रहने की स्थिति में जो दिक्कत है उसमें हम उनको सहयोग प्रदान करें। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, उन सबको उन्होंने इससे पहले भी जैसे कहा है, उन्होंने कहा हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि हम जहां हैं वहीं रहें और हर तरह से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही जैसे कि आपको इससे पहले भी मैंने अवगत किया है कि हमारा एक एफर्ट रहा है कि हम इस पूरे समय में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और उसके तहत अब 602 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स हैं और 12,024 आईसीयू बेड्स हैं, वह हम तैयार कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। इस नंबर में भी निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस विषय में काम कर रहे हैं। इसी से संबंधित किए हुए एफर्ट्स के संबंध में जैसे कि एम्स दिल्ली में एक इनिशिएटिव लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, मैं उसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने जेंडर वाइज और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों की दृष्टि में आप सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो उसमें अगर उस डेटा को देखें तो 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट बाहर आती हैं। एक तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिवाइड है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ यंग एज के लोगों को भी हमारे केसेस आए हैं कि जिसमें उनको पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन अगर हम डेथ डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि प्राइमरीली कोमॉर्बिडिटीज़ और साथ में एल्डरली एज, ये 2 प्राइमरी रिस्क फैक्टर के रूप में उभर कर आए हैं। और यंग पीपल अगर इफ़ दे आर फाउंड इन्फेक्टेड ऑल्सो तो उसमें क्योर रेट भी हाई है। नो एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। पीएसए ऑफिस की जो भी गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस पेशेंट्स विद इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल्स, ड्राई कफ should report to frontline workers, ASHAs, Anganwadi workers. What are the frontline workers ASHA expected to do and how would they screen such patients? So, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो पब्लिक हेल्थ सेटअप है उसमें प्राइमरीली हमारे पास फ्रंट लाइन में आशास, एएनएम्स और हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इन गाइडलाइंस के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी गांव या किसी भी शहर में अगर आपको किसी को कोई भी सिम्टम हो तो चाहे आप हमारे कॉल सेंटर से अप्रोच करें, चाहे आपके जो क्लोजली अवेलेबल आपके हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज में डिटेल्स लेके आएँ। उन सब को हमने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स के थ्रू ऑलरेडी ओरिएंट किया है। उन सबको हमने गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर इस टाइप का केस आपकी दृष्टि में आता है तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने सुपरवाइजरी लेवल पर इन्फॉर्म करें और किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये सेवाएं अवेलेबल कराएं। तो इसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम फील्ड लेवल पर जल्दी से जल्दी किसी भी पॉजिटिव केस को डिटेक्ट कर सकें। मौसमी सिंह प्रमाणित।
मेरा पहला सवाल आईसीएमआर से है और दूसरा हेल्थ मंत्रालय से। सर, महाराष्ट्र सरकार ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिख के अप्रूवल मांगी है क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके, बीसीजी टेस्टिंग को लेके, और प्राथमिक जांच में कुछ काफ़ी प्रभावशाली पाई गई है बीसीजी वैक्सीन। उसको लेके क्या कुछ फैसला लिया गया है, उनको अनुमति दी गई? और दूसरा सवाल हेल्थ मंत्रालय से, सर 40 दिन का लॉजिक क्या है? 21 दिन का लॉकडाउन था तो कहा गया कि साइकिल पूरा हो जाएगा, पर इसको बढ़ाया गया है, तो 40 दिन का कोई लॉजिक है? मेडिकल भी लॉजिक है क्या? अच्छा, ये जो बीसीजी वैक्सीन ट्रायल करने का हिसाब है, आईसीएमआर कोई प्रोटोकॉल को अप्रूव कर सकता है, लेकिन ट्रायल की जो परमिशन होती है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया करके आईसीएमआर की होती है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। दूसरा जो ट्रायल प्रोटोकॉल है वो CDSCO, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनको अप्रूवल को देना पड़ता है, उसके बाद में वो ट्रायल कर पाते हैं। मैडम, हमारा मेजर एफर्ट है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक करें, और इसके तहत अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहाँ पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। मिस्टर रजत, इंडिया न्यूज। सर, टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है लगातार। अभी आईसीएमआर ने बताया कि टेस्टिंग किट्स की हमारे पास कमी नहीं है, दूसरा लॉट आने वाला है, लेकिन एक बड़ा जो आप कह सकते हैं जो बातचीत चल रही है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी है कि टेस्टिंग में भारत बहुत पीछे है। क्या आप मानते हैं कि ये बात ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं, जिस हिसाब से टेस्टिंग देश में चल रही है वो सेटिस्फाइड है आपके लेवल पर? देखिए, जो किसने टेस्ट करना है, इसके जो गाइडलाइंस बने हैं वो उतने ही ब्रॉड है। अब अगर कोई आदमी एलिजिबल होगा, कोई इंसान चाहता है कि हमारे टेस्ट करना चाहिए, वो कभी भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो करवा ले सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो संख्या कम रहती है तो उसे उसका या तो ऐसे कहें कि उस किस्म के लोग हमको मिल नहीं रहे हैं, उनकी संख्या शायद कम होगी। इससे बढ़ के मैं कुछ कह पाऊँ ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो हम किसी को ना नहीं बोलते कि इसको टेस्ट नहीं करना है, अगर वो एलिजिबल है तो करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमारा शुरू से एक एफर्ट रहा है कि हम जो भी पर्टिकुलर हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करें। नॉन क्राइटेरिया बेस्ड अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारी अवेलेबल टेस्टिंग किट्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारे देश में एक मेजर एफर्ट रहा है कि हम एक प्रिएम्प्टिव अप्रोच में एक एडवांस एक्शन के रूप में काम करें, जिसके तहत कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने 30 जनवरी को उन्होंने बोला, उसको अनाउंस किया, हमने उससे ही 12-13 दिन पहले हमने अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो हमारा जो एक एडवांस एक्शन की वजह से एफर्ट रहा है, तो कुछ हद तक हमें लगता है कि दैट हैज़ बीन ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आवर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज सो फार। और उसके तहत ही आज भी जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग हैं उन सबको हम सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। साथ ही हम प्रोग्रेसिवली अपनी सैम्पलिंग जोन भी बढ़ाते रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने एक रिसर्च पेपर के बारे में पूछा था, तो उसके तहत ही हमने सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के रिलेटेड भी सैंपल टेस्ट किए। अब हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया है, तो जिसके तहत हम ओवरऑल प्रोसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए? टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए जिसको टेस्टिंग की जरूरत है। मिस्टर प्रशांत, न्यूज नेशन। न्यूज़ 24 से प्रसाद। सर, हमारा एक पहला सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिले जिले वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट करेंगे, तो वो फार्मूला क्या होगा टेस्ट करने का, जिससे कि 6 दिनों में आप आगे छूट देंगे 20 तारीख के बाद कि पहचान कर लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि जो MHA बार बार गाइडलाइंस जारी कर रहा है,
ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे लॉकडाउन वायलेट हो रहा है? लगातार डेली एक गाइडलाइंस जाती है, तो क्या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो इसको नहीं मान रहे हैं जिससे कि दिक्कत आ रही है? सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश में बताया गया था कि हम जो इवैल्यूएशन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर अच्छा काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ, उसके बारे में संबंधित गाइडलाइन कल इशू की जाएंगी। तो जैसे ही इशू की जाएंगी हम आपको अवगत करेंगे। Last question number 60. गाइडलाइंस को समय समय पर एमएचए रीइटरेट करती रहती है और कहीं कोई भी वायलेशन नज़र आता है तो उसको हम उस स्टेट या यूटी के साथ टेकअप करते हैं। You will get these details in the order, whatever the guidelines. Yeah. सर, Please just let the question come there. Please just let the question come from 60. Yeah. सर कल आपने बताया था कि 15 राज्यों के 25 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। क्या आप इसकी कोई रिवर्स पिक्चर हमको बता सकते हैं कि कितने राज्यों के कितने जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 दिन में कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं? सर, जो हमारे पास डेटा है उसको मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो आप काइंडली अप्रिशिएट करें कि जब हम इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए आते हैं तो हम हर इंटरप्रिटेशन को यहाँ इमीडिएटली नहीं लाते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए तो हम उसको करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।